पुलिस वो चारों पट्टी से घेर देते हैं पर्दा से, और उसी उठा लेते हैं, जहाँ बेड सीट रहती है वो बेड सीट के साथ उठा लेते हैं। 17 जुलाई को सतीश गहलोत को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उसको रिप्लेस करती है, और नए आती है अनुराग कुमार आते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, और ये 18 को सुबह मॉर्निंग में ये कर लेते हैं। यानी ये प्री प्लान थी। 2014 से जो हमारे पेपर लीक के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। बार बार बस लीक कर रहे हैं, धंधा बना लिया है आपने। और अब आप बोल रहे हैं कि हम सीबीआई को करा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। 12 साल यहाँ सरकार में हैं, तो आप उसमें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? बस आप होने दे रहे हैं। जिन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था वही इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे, और वो प्रोटेस्ट जब ख़त्म होगा जब सरकार हमारी सुनवाई करेगी। इस वक्त असी जंतर मंतर ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ 3 ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਰਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ और अपना मार्च भी जरूर करेंगे। गलबात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हो आप? इधर थे जब सोनम वांगचुक को उठाया? हाँ, यहीं पर थे। तो क्या हुआ सुबह सुबह? जैसे सुबह हम अभी बरस करके आए तो देख रहे हैं कि सोनम, जैसे हम यहाँ पर थे तो सोनम वांगचुक को पर्दे से घेर के कुछ लोग घसीट कर उधर की तरफ ले गए और एम्बुलेंस में, और ये कहकर ले गए कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, जबकि पहले से हमें कोई इन्फॉर्म नहीं, और लॉ मतलब कोर्ट से जो आया था रूल उसका कोई फॉलो किया नहीं गया, ज़बरदस्ती उन्हें ले गया है। मैं यूपी से गोरखपुर से हूँ, मेरा मतलब यहाँ से घर 871 किलोमीटर दूर है। एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ। बेसिक एजुकेशन एकदम खराब है, हमें ये नहीं सिखाया जाता है। हम लोग 12 साल तक स्कूल में हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं लोग, लेकिन उन्हें इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता है। भविष्य में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, AI इस समय नहीं सिखाया जाता है। एकदम एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का एकदम भ्रष्ट है, जबकि किसी भी देश को चलाने के लिए एजुकेशन सिस्टम हमारे देश की नींव होता है, और इसी नींव को ये लोग खोखला करके रख दिए गए हैं। ठीक है। तो खास तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋशिश करेंगे। भैया आप इधर थे सुबह जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, तो क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी वहाँ? और सिचुएशन ये कि बारीवत तरीका से उठाया गया, उस तरह के नहीं उठाना चाहिए जैसे
12 थे, तो पहले नंबर जो सिविल ड्रेस में थे पुलिस, वो चारों पट्टी से घेर देते हैं पर्दा से, और उसी उठा लेते हैं, जहाँ बेड सीट रहती है वो बेड सीट के साथ उठा लेते हैं। और बच्चों को जो गया प्रोटेस्ट में वो बचाने के लिए, तो बच्चों को धक्का मारा गया। ये प्री प्लान थी। 17 जुलाई को सतीश गहलोत को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उसको रिप्लेस करती है, और नए आती है अनुराग कुमार आते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, और ये 18 को सुबह मॉर्निंग में ये कर लेते। यानी ये प्री प्लान थी, ये कोई आती नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए ऐसे नहीं करनी चाहिए जो जिस तरह से किया गया है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैम आप सुबह यहाँ थे जब ये सोनम वांगचुक को? मैं नहीं थी, मैं घर पे थी, मैं सो रही थी, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे सोई थी और मेरे फ़ोन पे कॉल आए कि जो यहाँ पे रुके थे उन्होंने कॉल किया, तो मैं उठी हूँ और बस कपड़े चेंज करके यहाँ आ गई हूँ। और पर यहाँ पर बहुत बहुत बुरी हालत कर रखी है इन लोगों ने, और अब मैं क्या बोलूँ, मतलब गुस्सा भरा है। पर हमें पता है हम सभ्य लोग हैं, हम किसी भी तरह की उल्टी हरकतें नहीं करेंगे। हम बस अपने हौसले के साथ यहाँ बैठे हैं, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, या हमें मार दो या हमारी सुन लो, अब यही है। आपका प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा 20 मार्च? ये हर हाल में जारी रहेगा, ये हर हाल में जारी रहेगा। मतलब आपने सोनम सर को उठा लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम सब निकल जाएंगे। उन्होंने एक रीजन की वजह से हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने हमारे लिए 20 दिन भूखे रहे हैं वो यहाँ पर, तो हम उनकी वो 20 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था, उन्होंने 20 दिन तक जो दर्द झेला है, और जो यहाँ का युवा के साथ जो चीटिंग हुई थी, हमारे युवा भी नहीं, ये सरकार हमारे पूरे देश की जनता के साथ जो चीटिंग कर रही है, क्या हम बस अब निकल जाए मुंह उठाकर? फिर हमारे ये इतने दिन यहाँ प्रोटेस्ट करने का क्या फायदा? हमारे ये 1 महीने से यहाँ टिके रहने का क्या फायदा है? मार्च की एक कॉल दी गई है आपकी तरफ से कि वो होगी, वो हर हालत में होगी। अभी और लोगों ने भी, आप जो पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दिपके, उन्होंने भी भूख हड़ताल अनाउंस कर दी है। तो क्या लगता है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, खत्म हो गया, अब इसको खत्म कर दो, और एक तरफ से भूख हड़ताल इधर भी शुरू होगी? किसने बोला खत्म हो गया? हमने कॉल की थी कि ये प्रोटेस्ट है और हम ही डिक्लेयर करेंगे जब ये खत्म होगा। पुलिस वाले कौन होते हैं? पुलिस तो सरकार की है, आपको भी पता है, ये बीजेपी सरकार के अंडर आती है और ये सरकार की ही बातें करती है, सरकार की ही साइड लेती है, तो उनके बोलने से नहीं होगा। जिन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था वही इस प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे, और वो प्रोटेस्ट जब खत्म होगा जब सरकार हमारी सुनवाई करेगी। वो जो हमें चीट कर रही है वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेगी, और एजुकेशन सिस्टम जो एकदम मर चुका है उसको वापस से जिंदा करेगी, जिंदा करने की कोशिश करेगी, तभी ये जो हड़ताल चल रही है यहाँ पर वो खत्म होगी। सरकार का कहना है कि सीबीआई कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी हुए हैं इसमें, तो हम अपना काम कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या चीज? सॉरी, सीबीआई अपना काम कर रही है, अरेस्ट किए हैं उन्होंने नीट एग्जाम लीक को लेके, लेकिन ठीक है आपने अरेस्ट किया है, पर एक सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये सब चीजें, जितना भी सिस्टम है, ये सब सरकार के अंडर है। जो भी चीजें सरकार के अंडर है, तो जब, और ये नहीं है कि एक बार ही हुआ है, 2 बार ही हुआ है, ये होते ही जा रहा है। 80-90 जो है इनकी सरकार रहते हुए हमारे आंखों के सामने आए हैं लीक्स, और ये वो हैं जो पकड़ लिए गए हैं। आपको ये जो हम काउंट करते हैं वो ये है जो जनता को पता लग गया है, जो लोगों को पता लग गया है। इसके अलावा भी कितने ही पेपर लीक हुए होंगे। तो आप बार बार बस लीक कर रहे हैं, धंधा बना लिया है आपने, और अब आप बोल रहे हैं कि हम सीबीआई को करा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। तो भाई तुमने ये चीजें यहाँ पर, आपको जब इतने सालों से हो रहा है, आप 12 साल यहाँ सरकार में हैं, तो आप उसमें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? बस आप होने दे रहे हैं।
और मैंने अभी पीछे न्यूज़ देखी थी जो एनालिसिस करते हैं कितना हो रहा है, तो जब से मोदी सरकार आई है 2014 से जो हमारे पेपर लीक के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये पहले भी होता था, पिछली सरकारों में भी होता था, कांग्रेस की सरकार में भी होता था। ठीक है, होता था, ठीक है, पर उनका जो लेवल था, वो जितने उनके पेपर लीक होते थे वो बहुत नॉमिनल थे। साल में 2 हो गए, 4 हो गए। अब हर पेपर हमें यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे बैठे 1 महीना होगा, तब तक में 4 पेपर, नीट के बाद में 4 पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये 1 महीने के अंदर 4 पेपर लीक हो चुके हैं। तो आप सोचिए, ये साल भर के हिसाब से सोचिए कितने हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार में बदलाव लाने की जरूरत है? जो चीज इसको ओवरसी कर रहा है, जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं, मे बी उनमें कुछ दिक्कत है, उनको कुछ चेंज करना चाहिए, पूरे सिस्टम को चेंज होना चाहिए। नहीं, बस जो नीचे छोटे लोग हैं उनको पकड़ लेते हैं, उन पे भी जांच होती है, उनको कभी भी सजा नहीं मिलती है जिसके वो हकदार है। और ये बार बार हर केस में देखा गया है। जो भी बीजेपी सरकार को सपोर्ट करता है, जो भी बीजेपी सरकार का चाटुकारिता करता है, वो उसको बचाते हैं। और ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो रहा है, वो हर एक चीज में हो रहा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਦ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ।